Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Kritagya and you know me very well. So once again I'm back on my YouTube channel and I welcome you on the last session of Political Parties part 2 of this is a chapter of Civics class 10th and one of the most easiest chapters. So let's begin. Before starting I would like to tell you that what kind of topics we covered in the last session. So we covered the definition of political parties, what was political party, and we talked about its necessities and functions of political party, of course. Why do we need political parties? What are the components of political parties? And what are the functions of political parties? Why do we need them necessity? And how many political parties should be there and how much the number of political parties are appropriate for the development of a country. So we talked about one party system, two party system, multi party system, and we talked about the solution and we came to the conclusion that it doesn't depend on how the present politics it is there, but yes, it totally depends on how the politics was there in the past. कैसी पॉलिटिक्स चली आ रही है, कैसे देश का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे लोग देखते हैं डेमोक्रेसी को, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. इसलिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, देर इज नो रेगुलर फॉर्मूला दैट वी यूज. बेसिकली इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड पीपल टू पीपल. तो या सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट part 2, further topics. So we are going to talk about two types of parties: state parties and national parties. But before starting them, let us talk about recognized parties. So you must have seen different political parties using different symbols. And you, not you, but your parents, all those people who are 18 years above and 18 years, they go and vote. And how do they vote? They press a button against a symbol, and that symbol represents a particular party. So how do they get those symbols, and how do they, get a recognition? So every party in the country has to register with the election commission, and in every country, of course, in a country like India, there are many political parties which have been registered by election commission, but only some of them are recognized. So while the commission treats all parties equally, every party is treated equally. Rules are same for the governing party, opposition party, small parties, big parties. Everybody has to follow same rules, but still it offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol, like you have seen. BJP का symbol is a lotus flower, कमल का flower है. आम आदमी party has a झाड़ू, and Congress party has a hand. So we know different symbols are there. So these parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use that election symbol. These parties get recognized. That is why these parties are called recognized political parties. So there can be a question of one marker, that how are the political parties recognized. So here you have to write this, that while the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. So you have to write this. You can take screenshot of this answer. So let us move ahead. National and state parties. So when we talk about recognized parties, there are two types of parties: national and state. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least two seats in is recognized as a state party. So question can come that how can you recognize a party as a state party? So here is the answer for you. इसका मतलब ये है कि एक पार्टी जो एटलीस्ट कम से कम 6% टोटल वोट्स लाए इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर किसी पार्टी के एटलीस्ट 6% वोट आते हैं सारे सीट्स में से, और along लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, लाइक अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उसमें एटलीस्ट 6% वोट्स जो हैं वो उस पार्टी के पास होने चाहिए, और कम से कम 2 सीट्स होनी चाहिए, तभी उसको हम स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं. ऐसे ही कोई पार्टी जो एटलीस्ट 6% लाती है लोकसभा इलेक्शंस में या फिर असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स की,
4 स्टेट्स की असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट, या फिर लोकसभा में 6% वोट्स अगर किसी पार्टी के आ जाते हैं, और साथ ही साथ एटलीस्ट कम से कम 4 सीट्स उसके पास होनी चाहिए लोकसभा में, तभी उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई हैं एज ऑफ 2018। सो रिमेंबर दिस, दैट दिस डेटा इज 2018। तो ये है हमारी 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। यू कैन सी ओवर हियर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, आप लोग न्यूज में बहुत सुनते होंगे इन सब चीजों के बारे में, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऑफ कोर्स बीजेपी रूलिंग पार्टी इन सेंटर राइट नाउ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, you can see that this has been divided, Indian National Congress and National Congress Party. So before going further, let me tell you some particular information about these parties. So friends, हमारी बुक में 2 पेज हैं जिसमें इन सारी पार्टीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड वी हैव टू लर्न देम। ऐसा नहीं है कि वी हैव टू कि पूरा रट्टा मार लो पूरे पैराग्राफ, नो नॉट लाइक दैट, लेकिन हर पार्टी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी है ये तृणमूल कांग्रेस, एंड इनके प्रिंसिपल्स ये जो फॉलो करते हैं वो हमारे बुक में दिए हुए हैं, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वी नो दैट इट फॉलो हिंदुत्व, द वर्ड हिंदुत्व इज रिटन इन आवर एनसीईआरटी बुक्स, so you have to learn about that. Communist Party of India and CPIM, here you can see that Communist Party of India and Communist Party of Marxist, आप इनके जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उससे भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो सीपीआई है वो वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट के लिए वर्क करती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, मार्क्सिज्म के बारे में फॉलो के बारे में, तो मार्क्सिज्म के आइडियाज के बारे में जानती है और उनको फॉलो करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड, and of course the oldest party of our country, which participated in our freedom also, and it has been established by Jawaharlal Nehru, as we all know, and all this information is available in our NCERT, so I am not referred here because मेरे को एक नोट्स बनाने थे आप लोगों के लिए। अगर मैं पूरा कॉपी बुक ही कर दूं तो फिर देयर इज नो यूज। सो आप ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, सिलेक्टेड पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, अराउंड 3 to 4 पॉइंट्स आप हर पार्टी के याद कर सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि इट फॉलोज सेक्युलरिज्म, ये देयर इज अ वर्ड रिटन देयर, एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी नाम से ही पता चल रहा है कि पहले इंडियन कांग्रेस के पार्ट हुआ करती थी, तो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी से अलग हुई थी, और नेशनलिज्म को ये फॉलो करती है, नेशनलिस्ट जैसे आप देख सकते हो। सो या अब हमारे पूरे चैप्टर के लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के इस सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो चैलेंजेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, डायनेस्टिक सक्सेशन, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. So here I have written just 4 points, 4 headings basically. इसके नीचे के जो points हैं, that's just a story which is written in NCERT, so you have to just understand that। आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, nothing difficult in that। So वो you can write in your own language also। So उनके जो points हैं further you don't have to remember those, like आप एक reading करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो 4 points आपको ये बनाने हैं, और इसके नीचे आप पैराग्राफ में भी you can write the answers, like lack of internal democracy within parties, तो आप इसको explain पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में कर सकते हो। डायनेस्टिक सक्सेशन को भी एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर को भी आप एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, एंड सिमिलरली विद द 4th पॉइंट। तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ जो आपको इन हेडिंग्स ही पता चल रहा होगा। इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में होनी बहुत जरूरी है, जैसा कि हमें पता है कि कुछ पर्टिकुलर लीडर्स ही सामने आते हैं बार बार पार्टी के, और जो छोटे नीचे लेवल पे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं लीडर्स, उनका चेहरा कई बार सामने आने से रह जाता है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है पार्टी में, लेकिन जो नहीं होती है, अक्सर देखा जाता है कि पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। उसके बाद इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायनेस्टिक सक्सेशन। अब हम सभी को पता है कि लाइक वी ऑल नो दैट देयर इज एन एग्जांपल इन इंडिया आल्सो। सो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कि एक पार्टी ना एक फैमिली संभाल रही है। सो राजा है, राजा का बेटा जो होता है वही राजा बनता है। तो ये वाली का बात तो आपको पता ही है, दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस एजेस। और इसको हम एक तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन जो है, दैट्स वेरी मेजर प्रॉब्लम। एंड ये खाली एक पर्टिकुलर पार्टी में नहीं है इंडिया की, काफी सारी जो दूसरी पार्टीज हैं उसमें भी हमें डायनेस्टिक सक्सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो। सो तीसरा आता है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर पार्टीज। ये तो इन द वर्ल्ड दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इन एवरी फील्ड दिस इज अ प्रॉब्लम। तो रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इज कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो लोग वीक लोगों के ऊपर रूल करते हैं इंटरनली। तो तीसरा पॉइंट है। चौथा ये है कि पार्टीज जो हैं उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और कोई मीनिंगफुल चॉइस वो नहीं देते हैं सामने पब्लिक को। बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रह जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में यूनाइटेड किंगडम का दे रखा है, जहाँ पे लेबर पार्टी एंड उनकी ऑपोजिशन पार्टी में काफ़ी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते। बस पावर आपस में इंटरचेंज होती रहती है और लोगों को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है। तो ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। नाउ रिफॉर्म्स जो हमारे ऑलरेडी हम कर चुके हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंड किया गया है, उससे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जिससे कि एमएलएज और एमपीज जो हैं वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो पार्टीज चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे एमएलएज एंड एमपीज हैं जो जो पार्टी जीतती है उस पार्टी में चले जाते हैं। फिर अगर अगली बार अपोजिशन पार्टी जीतती है देन दे अगेन चेंज देयर पार्टीज। सो ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था बट नाउ दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और डेमोक्रेसी को ये हार्म कर रहा था। तो नाउ इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी और एमएलए पार्टी चेंज करता है देन ही विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Second, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. अब हमारे यहाँ एफिडेविट सबमिट करना इज मैंडेटरी बाय एवरी कैंडिडेट, जिसमें हम उनकी डिटेल्स पता करते हैं कि उनका क्या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, व्हाट इज देयर डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी दे ओन एंड हाउ मच मनी और बैंक में कितना पैसा है एंड ऑल दैट। वी नो एफिडेविट में ये सब, और पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है कि जिससे हम ये पता कर सके कि द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन सबमिटेड इज ट्रू और नॉट। क्या इसमें कोई चेंजेस तो नहीं किए गए, इज इट ऑल्टर्ड और नॉट, ऐसा पता करने के लिए हमारे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है। एंड ये मैंने एक लगाया हुआ है, यू कैन सी दिस इज अ एफिडेविट एंड ऐसा एफिडेविट होता है। और यस जो तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन इन्हें एक ऑर्डर किया पास किया था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया था और इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल भी उन्हें सबमिट करनी थी। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मेयर अ फॉर्मेलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सब करना किया है फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने करना शुरू तो किया है, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर मेयरली फॉर फॉर्मेलिटी। और इससे हमें ये नहीं पता, इस स्टेप से इस पर्टिकुलर स्टेप से हमें नहीं पता चल रहा है कि हैज़ इट गिवन एनी इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी और नॉट। सो हम इस पॉइंट को जज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। अब सजेशंस जो दिए जाते हैं पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए, सबसे पहले तो ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जा सके कि क्या इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन की जा रही है, क्या एवरी लीडर इज गिवन चांस to work for the country. It should be made compulsory for the political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party dispute
institutes to hold open elections to the highest posts. This is one of the most important point कि highest posts पे election जो होने चाहिए वो open होने चाहिए. Second, it should be made mandatory for the political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the party. It will empower women of the country. And here, weaker sections of society का भी हम include कर सकते हैं. तीसरा, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की. गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, because there are some parties which are very rich and there are some parties which do not have funds. तो equal होना चाहिए दोनों का. This support could be given in kind of petrol, paper, telephone, etc. Like पैसा मत दो, but at least give them resources so that they can use them. And वो जो money अगर हम देंगे तो फिर वो गलत जगह पे भी use हो सकता है, तो ये भी prevent किया जा सकता है. तो इससे money power जो है, muscle power, तो of course we can't do that through this point, but money power can be reduced in a political party. So election commission or state funding should be there, which should provide resources to the political party for campaigning, or it could be given in cash on the basis of votes secured by the party in the last election. तो पैसे भी मिल सकते हैं, but petrol, people, telephone resources देना is much better. So yeah, this was all about this chapter. We have completed this chapter. This is very easy as we know. So yes, thank you for watching my video guys. And इसके बाद मैं class 10th का content रोक के class 9th का content डालूंगी. And do not forget to subscribe my YouTube channel for more such updates, and so many videos are coming are on the way. So do like, share with your friends, all 10th and 90s. And yeah, thank you for watching my video. Bye bye, and we'll meet in the next video.